جس طرح سے ماشاءاللہ پوری قوم نے سیلیبریٹ کیا ہے کل گیلانی صاحب کی جو وکٹری ہے، ان کی جو فتح ہے، اس کو قوم نے سیلیبریٹ کیا، اس کو پی ڈی ایم نے سیلیبریٹ کیا، اس کو پاکستان کے عوام نے سیلیبریٹ کیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سلیکٹڈ کے خلاف کتنی نفرت ہے عوام کے اندر. اور پی ڈی ایم کی بھی، جس کو کہتے تھے پی ڈی ایم ناکام ہو گیا، پی ڈی ایم یہ ہو گیا، پی ڈی ایم نے دن میں ایسے تارے دکھائے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کرے. اور بلاول آپ اگر کچھ کہنا چاہیں، ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ آئے، تشریف لائے. سب کا یہ ہم نے مل کے ایک الیکشن لڑا، الحمدللہ ہم نے فتح اس میں پائی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور ان کو ناکام کیا ہم نے. بالکل صحیح. ابھی پورا جیسے مریم صاحبہ نے کہا ہے، یہ پورا ملک اس وقت جشن منا رہے ہیں اور اس خوشی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے کہ ہم نے مل کے اس کٹ پتلی کو ہرایا تھا. عمران خان کو ہم سب نے مل کے ہرایا ہے، اور اب ان کا اپنا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنا میجورٹی جو نیشنل اسمبلی میں ہے وہ کھو چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کا کابینہ کو جو تقریر ہے، جو باتیں ہیں، وہ اب ان کے لفظوں کے چناؤ سے، ان کے بولنے کے طریقہ کار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گھبرا چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو مستقبل ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہے، وہ جمہوریت کا ہے، اور ہم ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کٹ پتلیوں کو پاکستان کی سیاست سے فارغ کر دیں گے انشاءاللہ. ون بائی ون. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے، اور ان کے خطاب میں ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ الیکشن کمیشن ہے، اور انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بولا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. تو اب حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اس پر آپ؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کی وہ سپیچ نہیں سنی، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی سپیچ تھی، اور غصے میں کی، کانوں سے دھواں آ رہا تھا، الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے. وہ میرا خیال ہے ابھی بھی یہ سمجھتے کہ وہ کنٹینر پہ چڑھیں. اور ظاہر ہے جب آپ کو چاروں صوبوں سے عوام اس طرح مسترد کرے، جب آپ کے اپنے نمائندے آپ کو اس طرح سے مسترد کریں، تو ایک کے بعد ایک جو ہیملیٹنگ ڈیفیٹ ہوتی ہے، اس سے انسان کا جو دماغی توازن ہے وہ ہل جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں اس بات کو. لیکن جس ای سی پی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس ای سی پی کو آپ نے، اس ای سی پی کے چیئرمین کو خود ہی اپوائنٹ کیا تھا، انہی کو اپوائنٹ کیا تھا آپ نے. اور اگر انہوں نے جو ڈسکا میں دھاندلی ہوئی جس میں ان کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو ہی اغوا کر لیا گیا، اتنی شدید دھند تھی کہ اس میں آفیسرز ہی غائب ہو گئے، اور اس کے بعد اگر انہوں نے دباؤ سے باہر نکل کے، آپ کی غنڈہ گردی سے باہر نکل کے، وہ جو آپ نے اداروں کے اوپر ایک پریشر رکھا ہوتا ہے، اس سے باہر نکل کے اگر انہوں نے آئین اور قانون پہ مبنی فیصلے دیے ہیں، چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اداروں کو ڈریگ کرنا شروع کر دیں اور ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ وہی ای سی پی ہے جس نے آپ کے فورن فنڈنگ کیس میں آپ کے اوپر پردہ ڈالے رکھا، اور اپوزیشن کے، خصوصاً پی ایم ایل این کے جو لیجسلیٹرز تھے، ان کو آپ نے نااہل کیا. ان کو آپ نے ان کو پریشر ڈال کے آپ نے اپنے لوگوں کو تحفظ دلایا، جن کی اتنی گلیئرنگ چیزیں عوام کے سامنے آ چکی تھیں، اور پھر اپوائنٹ بھی آپ نے خود کیا. اب آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اب اپنی جو شکست ہے اس کی ذمہ داری دوسروں پر مت ڈالیں. نظر آ رہا ہے اور سارے آپ خوش ہیں، تو یہ بتائیے گا کیونکہ آپ پہلے سلیکٹرز پر بھی الزام عائد کرتے رہے ہیں، جو کل الیکشن ہوا ہے، گیلانی صاحب جیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب قوتیں پیچھے ہٹ گئی ہیں اور میدان صرف سیاستدانوں کے لیے، سیاستدان آمنے سامنے آ چکے ہیں، یا ابھی بھی کوئی کردار جو ہے وہ یہاں پہ درپردہ چل رہا ہے؟ ہم نے اس پہ پہلے بھی بول چکے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کا لڑائی ہے، یا ایک دن میں جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ ایک رات میں ایک الیکشن سے تبدیل ہو جائیں گے. کہ آپ ایک سوئچ
फ्लिक करेंगे और अचानक हम मुकम्मल एक जमहूरियत बनेंगे। ये एक सफ़र है, ये एक प्रोसेस है। जमहूरी क़ुव्वतों ने, अवाम के नुमाइंदों ने अपने लिए स्पेस हासिल करना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने सब मिल के बाई इलेक्शंस लड़े, जब हमने सब मिल के सेनेट के इलेक्शंस लड़े, तो उस प्रोसेस से, हमारे लड़ाई से हमने थोड़ा बहुत कुछ स्पेस तो छीना है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो, अगर हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए हर अदारा सिर्फ अपना ही काम करे, तो फिर हमें इस जदोजहद को जारी रखना पड़ेगा। इस पे मुसलसल काम करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अवाम के लिए वो स्पेस हासिल करना पड़ेगा। मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि देखें, इमरान खान को तो बहुत सूट करता था कि वो सेलेक्टर्स का नाम भी ले, उनको इन्वॉल्व भी रखे, उनको इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान के अवाम को, इदारों को, लोगों को, MNAs को, MPAs को प्रेशराइज भी करे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इदारों को भी उसकी नाकामी, उसकी जो नाअहली है, उसकी जो नालायकी है, उसने इमरान खान से ज़्यादा इदारों को अफेक्ट किया है। इदारों के अंदर से भी लोग ये पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम किसी ऐसे शख्स का बोझ अपने सर पे क्यों उठाएं जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया, जो मुल्क की बर्बादी का ज़िम्मेदार है, जो वोट चोर है। हम ऐसे शख्स के पीछे खड़े हुए क्यों नज़र आएँ? और मैं ये भी समझती हूँ कि आज जब इमरान खान नाकाम हुआ और जब उसको शिकस्त हुई, तो सुबह मैं समझती हूँ कि इदारों के सरबराहों को उसके साथ बैठ के ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता या कोई और कौमी सलामती का या कोई और मसला होता, उसमें आप मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, जाली वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। लेकिन इस किस्म के जो विजुअल्स थे वो भी अच्छे नहीं थे, उससे भी आपको परहेज़ करना चाहिए। कौम ये देख रही है कि वो आपके चेहरे दिखा के आपको इस्तेमाल करता है। लेकिन आप ये देखें कि अभी सफ़ा जो है वो हवा से हिला है, तो लोगों ने प्रेशर में आना छोड़ दिया, लोगों ने डरना छोड़ दिया। और अगर ये पीछे नहीं हटे तो इनको पीछे हटना चाहिए, इनको अपने आईनी और अपने कानूनी दायरा कार तक महदूद होना चाहिए। और यही सारी सियासी जमातों की कोशिश है। हम चाहते हैं कि हम इनकी इज़्ज़त भी करें और अदारों के वक़ार के ऊपर कोई भी दाग ना लगे, तो हम इसी चीज़ से उनको बचाना चाहते हैं। लेकिन उनको ख़ुद भी ये एहसास करना होगा कि एक हारे हुए शख्स के, जिसको 22 करोड़ अवाम अपना मुजरिम समझती है, उसके पीछे खड़े हुए उनको नज़र नहीं आना चाहिए। मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि सैटरडे को 12:15 बजे नोटिफाई हो गया है अभी कौमी असम्बली का इजलास, जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आप प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं, जबकि आप तो पहले ही नो कॉन्फिडेंस कर चुके हैं उनके ऊपर? और दोनों से ये क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे देखते हैं? फिर संजरानी साहब जिनके लिए वोट चुराया गया था, दुनिया ने देखा कि थिएटर बैलेट में कुछ और निकला, और जब हाथ खड़े किए गए, बंदे खड़े किए गए, कुछ और, तो वो फिर उम्मीदवार बन के सामने आ गए, जिनके बारे में कोई ठप्पा भी है कि वो शायद किसी मखसूस जगह के उम्मीदवार है। तो ये दोनों सवाल सर आप दोनों इसके जवाब दे दें, आप इसको कैसे देखते हैं? हम जो जहाँ तक ये मनूवर है, ये कोशिश है, ये जो ड्रामा करने की कोशिश, अपना कोठाई को, अपना हार को छुपाने के लिए, ये नाकाम रहेगा। ये इसलिए नाकाम रहेगा कि पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देख चुका है कि जब ज़मीर के मुताबिक आपके मेंबरान असेंबली वोट देते हैं तो PDM जीत जाते हैं, PTI की कठपुतली उम्मीदवार नहीं जीतता है। अब इमरान खान समझता है कि ये ड्रामाबाजी करके इस इशू को वो दबा सकेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फैसला करेगा, 11 जमातें फैसला करेंगे कि हम अदम एतमाद कब और कहाँ लेकर आएंगे। ये इस किस्म की ड्रामाबाजी जितने भी करते रहें, हम जानते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जानते हैं कि बेशक आज तक कुछ लोग ट्रेजरी बेंचेस पे ज़रूर बैठे हैं, मगर उनके दिल हमारे साथ हैं। और जब भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का क़ियादत कॉल देगी, तो वो सारे के सारे लोग उस तरफ से लेकर इस तरफ आएंगे। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि बकौल इमरान खान के,
उसके लोग बिके हैं, उनको ख़रीदा गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किस मुंह से अपने बिके हुए अरकान को, जिनको आप ये कह रहे हैं कि मेरे MNAs बिक गए हैं, उनको ख़रीदा गया है, तो वो जिनको आप बिकाऊ कह रहे हैं, आप उनसे किस मुंह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगेंगे? एंड अगर नेशनल टीवी पे आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया तो आप सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, आपने अब कह दिया, उस पर अमल करो। उन मेंबरान नेशनल असेंबली पे केस करो, उन पे FIR काटो, उनको निकालो, ये आपको करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन उसने खुद कहा है कि नाम बताया, तो इलेक्शन कमीशन को बता दो ताकि इलेक्शन कमीशन उसको तहकीक करके इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन ले सकता है। लेकिन सच ये है कि इमरान खान को पता है, सच ये है कि इमरान खान को पता है कि हकीकत ये है कि उनके मेंबरान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है, और जब उनको मौका मिलेगा, जब ऑपोजिशन ये अदम एतमाद का वोट लेकर आएगा, तो वो हमारे साथ होंगे। नहीं, और जो एक सेकंड जो पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने ही मेंबर्स के ऊपर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो पैसा जो आप जिसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो 50-50 करोड़ रुपया अपने एक मेंबर को, MNA को, आपने बतौर रिश्वत टैक्स पेयर के पैसे से क्यों ऑफ़र किया? वो पैसा किस गिनती में गया? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो पैसा नहीं चला? वो आपने पैसा अपने मेंबर्स को दिया, उनको ख़रीदने की कोशिश की, उनको रिश्वत देने की कोशिश की, इस कोशिश में कि वो डूबती हुई कश्ती से छलांग ना लगाएं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन होते हैं सरकारी ख़जाने से अपने मेंबर्स को रोकने के लिए, उनको आप ख़जानों के मुंह उनके लिए खोल दें। वो 50-50 करोड़ और जिनको 1-1 अरब रुपया प्रॉमिस हुआ है, वो आपने कहाँ से दिया है? उसकी आपने दी है, उस पैसे का भी नाम लें जो आपने चलाने की कोशिश की है। चलो उसको सॉरी। सीक्रेट बैलेट के जरिए ये इलेक्शन हुआ है, अभी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन आ रहा है। PDM और आप दो मरकजी रहनुमा हैं, आप हमायत करेंगे कि ये ओपन बैलेट के जरिए हो जाए या आप सीक्रेट बैलेट की हमायत करेंगे? एक बात तो ये है, और दूसरी हमने ये देखा है कि कुछ फ्रिक्शंस आ रही है पंजाब के अंदर भी, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, तो क्या PDM को पर्टिकुलरली मरियम, आप पंजाब के हवाले से आपका बैकग्राउंड भी खास है, तो क्या चौधरी ऑफ पंजाब जो गुजरात की जो चौधरी है वो एक्सेप्टेबल होंगे PDM को, कि अगर बुजदार को हटा दें तो चौधरीज आपको एक्सेप्टेबल होंगे एज CM और इन एनी अदर शेप? देखिए, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं है, ये बात जो है वो PDM में डिस्कस होगी। अगर ये ऑप्शन है तो इस पे ऊपर बातचीत होगी। मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी में, मियाँ साहब की मौजूदगी में, जरदारी साहब की मौजूदगी में इस पे तबादला ख्याल होगा, और उसके बाद PDM जो भी डिसाइड करेगी, सबका मुश्तरका जो फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। पहला सवाल आपका क्या था? जो सीक्रेट बैलेट है, ये ओपन बैलेट की हमायत करेंगे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर? नहीं, ये तो अब कोई बात नहीं ना कि जब आपको ओपन बैलेट सूट करता है तो आप ओपन बैलेट के पीछे चल पड़ें। जब आपको ये पता चले कि आपके जो अब ज़िंदगी मौत का मसला हो गया, आपके लोग भाग रहे हैं, तो आपको ओपन बैलेट, और जब आपको सीक्रेट बैलेट सूट करता है उसके बाद आप कहें कि नहीं जी, आइन का है कि सीक्रेट बैलेट सूट करता है। 2 साल पहले आपको संजरानी साहब के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट सूट करता था। तो ये जो इस किस्म की बचगाना हरकतें हैं ना, लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, लोग ये सब समझते हैं। आज आप खड़े होकर अगर कोई बात करते हैं तो लोग अपने आपके 3 साल के बयानात, आपकी 3 साल की कारकर्दगी, आपके 3 साल के जो स्टांस है वो निकाल के ले आते हैं। इसीलिए आपकी बात का कोई यकीन नहीं करता कि आपको जब ज़रूरत महसूस होती है, जब आपको अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती महसूस होती है, तो आप अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना भाई। जहाँ तक सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट का सवाल था, उस पे हमारा जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सख्त रद्द अमल आया, वो जिस तरीके से वो हमारा आइन को और कानून को छोड़ के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, उस पे हमारा सख्त एतराज़ था कि आप अगर आइन में तब्दीली लाना चाहते हो तो वो पार्लियामान का फोरम मौजूद है। जहाँ तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमने अपना स्टेटेड पोजीशन जो हम चाहते हैं, किस तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमने स्टेट किया है। लेकिन उस रिफॉर्म के लिए, उस इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए कानून साजी तो होना पड़ेगा, वरना आपको जैसे रूल्स में है वैसे ही इलेक्शंस कंडक्ट करना पड़ेगा। और जो कानून साजी है
वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी, ये वोट चोर नहीं करेगा। सैटरडे को मैडम क्या करेंगे आप लोग? जाएंगे, गैर हाजिर रहेंगे, बाइकआउट करेंगे या एतमाद के वोट के अमल का हिस्सा बनेंगे, क्या करेंगे? आप सैटरडे को देख लीजिएगा, अभी हम क्यों बताएं आपको। मुश्तरका उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवार पे बात हुई है। मुश्तरका उम्मीदवार पीडीएम का कौन होगा चेयरमैन सेनेट के लिए? जी बात हुई है, लेकिन इसका फैसला पीडीएम करेगी। क्या गिलानी साहब का नाम इंतजार फरमाइए। हमने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ओरिजिनली डिस्कस किया था, और जब हम मिलते हैं कंसेंसस के साथ ऐलान भी करेंगे। चोरी हुए थे, आप दोनों रहनुमाओं के वोट चोरी हुए थे संजानी के अदम एतमाद की तारीख में। आप दोनों रहनुमा नाकाम हुए उन चोरों को अपनी सफों के अंदर से सामने लाने में जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया था, उस पर क्या कहेंगे? हम समझते हैं कि नया सेनेट इलेक्शन हो चुके हैं, हमने अपना नया सेनेट के इलेक्शंस के उम्मीदवार भी चुने हैं, नए टिकट्स दिए हैं, लोगों को सेनेट में भेजे हैं, और उस एक्सपीरियंस से काफ़ी सीख चुके हैं। अगर हम उस एक्सपीरियंस से नहीं सीख चुके होते तो गिलानी साहब आपके सामने सेनेटर इलेक्ट फ्रॉम इस्लामाबाद नहीं खड़ा हुआ होता। कमेटी बनाई गई थी तहरीक अदम एतमाद के जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था सादिक संजरानी के खिलाफ कमेटी बनाई गई थी, तो वो प्रोब करने के लिए बनाई थी। वो कमेटी तो आपके लिए नहीं था ना, वो तो हमारे लिए था, और हमने अपना पार्टी में उस इंफॉर्मेशन को लेके अमल कुछ किया होगा, इसलिए हम आपके सामने इतने मुतमिन और कॉन्फिडेंट खड़े हैं। ये बता दें, जिस तरह पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी का ये इलेक्शन इत्तेफाक से लड़ा, क्या अगला जनरल इलेक्शन भी इसी तरह लड़ेंगे? आप मुखालिफ नहीं होंगे? दूसरी बात ये सर, कल तक आप लोग कहते थे कि लोटों की जगह यहाँ पर नहीं है, बाथरूम में है, क्योंकि अब इलेक्शन में नून लीग के टिकट की बातें होने लग गई हैं, वो लोटे कहाँ पे एडजस्ट होंगे? मैं ये रिकग्नाइज नहीं करता हूँ जो सेंटेंस आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन हम इस कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ सब मिल के काम कर रहे हैं, और उस लड़ाई में हम हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है, भले क्यों नहीं वो लोटे भी हो। बिलावल भुट्टो साहब ने इसका जवाब बड़ा अच्छा कल दिया कि ये कब करना है नहीं करना है, इसका फैसला पीडीएम करेगी। केपी में इमरान खान की जीत नहीं हुई, नौशहरा में इमरान के घर में घुस के उसको मारा है, और अगर कुछ सीट्स ये अपनी निकाल भी गए हैं सेनेट के अंदर तो ठीक है, लेकिन फेयर प्ले से करते तो बेहतर होता। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे बंदे चोर थे। इमरान खान नेशनल टेलीविज़न पे आके पूरे कौम के सामने कह रहे हैं कि मेरे पत्नी कितने लोग 15 लोग वो जिक्र कर रहा था पिक चुके हैं, लेकिन हम जानते हैं ना, हमने ये इलेक्शन लड़ा है। आपके लोग जो इस तरफ वोट दिए हैं वो बड़े बहादुर लोग हैं, वो इस मुल्क के अवाम का हालात दे के आम आदमी का परेशानी दे के आपका जबर कर रेजिस्ट करते हुए, वो सारे इदारे जो आपके नीचे काम करते हैं उनको रेजिस्ट करते हुए यहाँ आके वोट दिए हैं। आप उन पे अगर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, हम पे इस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो ये इमरान खान का अपना प्रिंसिपल है। इमरान खान खुद कहता है कि मैंने तो केपी में इतने लोगों को निकाल दिया था, तो अभी भी निकाले। अगर ये हकीकत है, अगर इमरान खान अपना पोजीशन पे कायम है, अगर इमरान खान समझता है कि ये सच है, तो फिर हम चैलेंज करते हैं कि आप उन MNAs का नाम लो और उनको पार्लियामान से बाहर फेंको। देखिए, नहीं एक सेकंड, मैं आपको जवाब देती हूँ इस बात का। बजाय इसके कि हम अपने लोगों को चोर कहते, अपने लोगों को बिकाऊ कहते, हमने उन लोगों को पीछे हटने पे मजबूर किया है जो लोगों को धमकाते थे, डराते थे, फ़ोन कॉल्स करते थे, और उसका इलाज ये है। बीमारी की सिर्फ तशखीस नहीं की, उसका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज भी किया है। आपको सब कुछ पता है यार। हमारे लोग भी अब बड़े सियाने हो गए हैं, फ़ोन कॉल सुनते भी हैं
बात करते भी हैं, फिर करते वो ही हैं जो उनका दिल करता है।